Ladies and gentlemen, it was on a cold January morning last year that India woke up to its champions sitting on the roads of the national capital, seeking the sacking of the then Wrestling Federation of India chief, Brij Bhushan Sharan Singh. You remember those pictures, they are on the left-hand sides of your screens. These men and women, Sakshi Malik, Bajrang Punia, Vinesh Fogart, who had won medals for India and had made us beam in collective pride, was seeking justice. Their charges were stunning. The WFI chief, also a BJP MP, had stalked, harassed and molested at least 6 Olympians. But this time, today, a year on, they are fighting against each other. Exactly a year later, wrestlers are back in Jantar Mantar. Again, today we saw protests. But this time, these protests were against the Olympians who had led the mutiny against Brij Bhushan Sharan Singh last year. Junior wrestlers protesting against their seniors today, accusing them of ruining their careers. One placard that they held urged the World Wrestling Body to save them from Sakshi Malik, from Bajrang Punia and Vinesh Fogart. They said because of the WFI versus wrestler fight, there have been no national camps or competitions. Now, their grouse is justified. The mess has ensured that wrestling in India has come to a complete standstill for the last 1 year. The ad hoc committee found merit in what the junior wrestlers were saying and has now promised a national championship within 6 months. But here is where things get interesting. The 30-odd wrestlers that you see, 300-odd wrestlers that you see, protesting against Sakshi Malik and Punia and Fogart, well, they also want the ad hoc committee looking at the WFI currently suspended. Instead, they want Sanjay Singh, Brij Bhushan's crony, who won the election but has gotten suspended by the government, back as president. Ladies and gentlemen, it's a telling reflection of how politics has divided Indian wrestling down the middle. हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एड हॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब से मैं अभी भी यही निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप इतने समय से देख रहे हैं, वो अभी भी संजय सिंह है, वो कैसे आंखें दिखा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि फेडरेशन में जो है उसका दोबारा से कोई इंटरफेरेंस हो। और पिछले 2 दिन से जो है वो ब्रिज भूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। कंपटीशन नहीं हो पा रहे जी, 2 साल 3 साल होगी, बर्बाद हो गए सब बच्चों की। कंपटीशन नहीं हो रहे, कोई स्टेट नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, कोई नहीं है। अपने को ये फर्क पड़ता है कि नए बच्चों को ऊर्जा मिलना चाहिए, नए बच्चों का भविष्य मार रहे हैं। इनको हटाओ, नए बच्चे इनकी जगह कुश्ती लड़ने जाए तो देश को नए नए पदक मिलेंगे। इसी कारण करा है जो सस्पेंड किया, जैसे उसी दिन राहुल गांधी उनके यहाँ पर जोर करने क्यों गए, प्रैक्टिस करने क्यों गए? ये कोई साजिश के ही है ना। एलिगेशन ये लगा रहे हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी युवा बच्चों को आगे नहीं आने देना चाहते, ये फेडरेशन पे कब्जा करना चाहते हैं, अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। Let me go across to my guests this evening to try and figure out what exactly is going on in the world of wrestling. Why are India's junior wrestlers now protesting against their seniors? Mukul Pehlwan is a former international wrestler. He's joining us on the broadcast. Rahul Chaudhary is a junior wrestler who was out at Jantar Mantar protesting today. He's on the broadcast with us as well. We have Karishma, who's joining us on the broadcast. She looks at sports at the Times Network. Thanks, Karishma. And Chandrasekhar Luthra is a senior sports journalist. He's joining us on the broadcast as well. राहुल चौधरी, सबसे पहले तो सवाल आप पे ही आएगा क्योंकि आज आप लोग जंतर मंतर पहुंचे और आप लोग अपने सीनियर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट किस चीज के लिए है? आपके सीनियर्स ने जब लड़ाई की WFI से, जब वो WFI से भिड़े तो उनका कॉज तो सही था ना। अगर महिला रेसलर्स को WFI का प्रेसिडेंट मोलेस्ट कर रहा है, हैरेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, क्या उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत था?
राहुल? नहीं जी, उसके खिलाफ आवाज उठाना कोई गलत नहीं था। तब हम जो पहला धरना हुआ था, हम भी पहलवानों के साथ थे और हम उस धरने में भी थे। लेकिन अब उसका जो पुराना जो अध्यक्ष है, जो ब्रजभूषण है, उसकी तो बात खत्म होगी ना अब। वो तो लड़ाई अलग थी, वो तो लड़ाई अलग हो चुकी है ना। उन्होंने तो कुश्ती से और कुश्ती फेडरेशन से वो तो अध्यक्ष पद से हट चुके हैं अब उस चीज का इस चीज से क्या मतलब है? अब मतलब है हमारी पहलवानी का जो जूनियर नेशनल है, कैडेट नेशनल है, अंडर 14 है, अंडर 16 है, अंडर 18 है। 2023 के अंडर में कोई नेशनल, कोई स्टेट, कोई भी प्रतियोगिता नहीं हुई। तो उससे तो हमारा नुकसान हो रहा है ना, एक तरफ से देखा जाए तो। और ना ही इस बात पर कोई जो राहुल, हमारे तो सीनियर इसमें पहलवान है बात करना चाहते हैं। ये बस अपनी ही बात रखना चाहते हैं। जूनियर पहलवानों की इन्होंने कभी बात ही नहीं रखी। इन्होंने हमेशा अपना ही फायदा देखा। अब आप पिछले लेकिन जो अभी ये फेडरेशन हुई थी, इसमें भी इन्होंने ये किया है कि हाँ वो उसका करीबी है। नेशनल की डेट आई कि गोंडा में आई, ये भी बता सकते थे कि भाई चलो नंदिनी नगर गोंडा में ना हो, वो हरियाणा में हो जाए, यूपी में हो जाए, दिल्ली में हो जाए। पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। तो 2023 का साल बर्बाद गया। अब जिसकी लास्ट ईयर कैडेट की है वो नहीं, जूनियर तो में आ आप गया, मुझे उसकी 1 एक साल बात बेकार। बताइए हाँ जी। राहुल, तो आप मुझे एक बात बताओ। आप कह रहे हो आपको इस बात से बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने हाँ अपनी जी। आवाज तो उठाई, लेकिन 1 साल लग गया बृजभूषण शरण सिंह को WFI से आउस्ट करने में। वो भी इलेक्शन जब हुए, वो तो जी इस तरह उनका। के इलेक्शन हुए कि बृजभूषण शरण सिंह वापस प्रेसिडेंट, सुनो सुनो सुनो, वापस एक हाँ तरह जी। से प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बना, जिसको इलेक्ट किया गया, वो उन्हीं का आदमी है। नहीं, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि संजय सिंह उन्हीं के आदमी है। तो आप विनेश फोगट को, आप स्वाति मलिक को, आप बजरंग पुनिया को क्यों ब्लेम कर रहे हो? क्योंकि आज प्लाकार्ड्स आपने पकड़ रखे थे आप लोगों ने, जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन हमको इन 3 रेसलर्स से बचाओ। तो हाँ गलती जी। रेसलिंग इन इंडिया को स्टैंड स्टिल पे लाने के लिए गलती इन 3 रेसलर्स की है या WFI की और बृजभूषण शरण सिंह की है? आप गलत गलती तो जी। लोगों पे तो निशाना नहीं साध रहे हो। नहीं नहीं, गलत लोगों पे निशाना कहाँ साध रहे हैं जी? निशाना तो बिल्कुल सही है ना। वही तो वही बात होगी, बोला दो झोटू की झुंड में लड़ाई में झुंड का नाश हो जाया करे। तो एक तरफ ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, एक तरफ सरकार हाँ, अपनी मनमानी कर रही है। उसमें पिस कौन रहा है? उसमें पिस जूनियर पहलवान रहे हैं ना। हाँ। नुकसान तो जूनियर पहलवानों का हो रहा है। लेकिन आपने तो संदीप गलती तो सिंह के इनकी खिलाफ है। तो प्रोटेस्ट नहीं किया, संजय सिंह के खिलाफ तो प्रोटेस्ट नहीं किया। इनफैक्ट आपके प्रोटेस्टर्स तो साउंड बाइट दे रहे थे मीडिया को, जो कह रहे हैं कि संजय सिंह वाला जो पैनल है उसको वापस लाइए, एडहॉक कमेटी को हटाइए। वो एडहॉक तो कमेटी ने अभी तो खैर आज अनाउंस कर दिया है कि अगले 6 हफ्ते में आपके एड चैंपियनशिप होगी। जी, अभी एडोप कमेटी ने कुछ नाम पहले डिसाइड किए थे। उसमें 65 किलो में जो फ्री स्टाइल का रेसलर है उसका नाम ही डिसाइड नहीं किया अभी तक। वो क्यों नहीं किया एडोप कमेटी ने? ग्रीको रोमन के सभी पहलवानों का नाम डिसाइड कर दिया ओके, है। और फ्री रेसलर का भी है, अमन सहरावत का ओके। 57 में है। 65 किलो में किसी का नाम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई? 65 किलो में किसका नाम? करिश्मा, तो ये बात तो हम भी इनके ओके, ऊपर कह ओके। सकते हैं कि आई थिंक एडोप वी कमेटी हर्ड फ्रॉम में द जूनियर इनकी रेसलर्स। पकड़ है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं एडहॉक कमेटी में इनकी पकड़ है। इनकी पकड़ हाँ माने क्या? मतलब किसी की भी पकड़ हो, एडहॉक कमेटी ने तो अपना काम करना है ना। आप लोगों के हाँ, लिए तो वो तो चैंपियनशिप वही बात करानी है, वो होगी ना। बोल रहे हैं अब 6 आप। हफ्ते में करा देंगे। हाँ, करिश, हम्म, हम्म। अगर आप हमारी बात सुनते हो तो वो पकड़ के तो रूप में ले लेते हैं। अब संजय सिंह का कोई किसी को क्या पता है कि वो उन्हीं के आदमी है? अभी तो वो चुनाव बने भी नहीं था, उन्होंने अच्छा, तो काफी ठीक है। अच्छा फैसला लिया लेकिन था ये तो बच्चों जग के। जाहिर, करिश्मा, नहीं नहीं, ये तो कम ये इन तो हियर। नेक्स्ट चुनाव तो निष्पक्ष मतलब हुए थे ना ठीक है, तो। ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी राहुल, और सबने आपकी बात सुनी। मैं जरा और लोगों को भी ले आऊं इस डिस्कशन में। करिश्मा, व्हाट्स गोइंग ऑन? It's, I understand, to some extent, I understand why the junior wrestlers are protesting against their seniors, against the Olympians who for 1 year have fought the good fight, as many people would say, to clean up Indian wrestling. Why this sudden mutiny by the junior wrestlers? Why this insistence that Sandeep Singh's panel should be restored? Is this shadow boxing by Brujbhushan Sharan Singh and his cronies? Were these protests that we saw in Jantar Mantar today sponsored? What is your sense?
Well, Shreya, to an extent, it does seem like it because these wrestlers, the young wrestlers, junior wrestlers at Jantar Mantar were first saying that they are protesting against Bajrang Punia, Sakshi Malik and Vinesh Fogart because they are losing years. They are losing potential years where they can fight in competitions, whether it's under 15, under 20, those tournaments. And because of the entire mess and the entire chaos that we've seen in wrestling in India for the last year or so, and it's still continuing, they are losing out on precious time and precious tournaments where they stand justified. But if we talk about the Sanjay Singh led panel, Shreya, I can confirm to you at this very moment that it is not going to come back. Whether it decides to follow protocols, not follow protocols, that elected body, the elections that had happened will not be coming back until and unless, of course, Sanjay Singh chooses to go to court and it is mandated by court that, okay, what has happened is wrong and you can come back and run WFI. Only then is Sanjay Singh or the entire elected panel going to come back. The Sports Ministry is very, very certain that the first decision that was taken by this panel, which was to hold under 15, under 20 nationals in Gonda, is not the correct decision. The way it was taken was not correct. And in the suspension notice, it very categorically said that it still shows that there is influence of earlier members, which of course was directed at Bhushan Sharan Singh. So that panel is not coming back. One can only hope that the ad hoc panel, which is now starting from scratch, can put together the WFI back in a way that we look forward to the Paris Olympics and are actually not scared of thinking what will happen to wrestlers when they compete there. मुकुल पहलवान, आप इंटरनेशनल रेसलर रह चुके हैं. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि जो बच्चे हैं आपकी कम्युनिटी के, आपकी जो रेसलिंग कम्युनिटी है उसके, उनके कंसर्न्स हैं. ये हम मान रहे हैं कि एक साल से रेसलिंग ठप पड़ी हुई है देश में, क्योंकि रेसलर्स को अपनी ही फेडरेशन के साथ लड़ाई करनी पड़ रही है फॉर जस्टिस. लेकिन आप देखिए कि आपकी जो फ्रेटर्निटी है, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है, आप ही की जो रेसलिंग फ्रेटर्निटी है, फूट तो उसमें ही है. जहां जब जो 3 रेसलर्स हरियाणा के आए थे प्रोटेस्ट करने, कई और रेसलर्स ने, खासकर कि अदर स्टेट्स के रेसलर्स ने, उन्होंने कहा ये तो सब कांग्रेस के बिठाए हुए लोग हैं, ये जो चार्जेस लगा रहे हैं, झूठे चार्जेस लगा रहे हैं. आज आपके पास जूनियर रेसलर्स हैं जो आके कह रहे हैं कि ये इन तीनों को देखो, इन्होंने अपना करियर तो बना लिया, अब हम लोगों का करियर खत्म कर रहे हैं. ये तो आपकी ही अपनी रेसलिंग कम्युनिटी में फूट पड़ी हुई है. ये क्या नाम है श्रेया जी, मैं आपके अभी जो टीवी स्क्रीन पर देख रहा था, जो बच्चे जूनियर धरने पे बैठे हैं, और इन्हीं के लिए इन 3 लोगों ने, बजरंग ने, विनेश ने और साक्षी ने, इन्हीं के लिए लड़ाई के नाम लड़ी थी. जिस टाइम लड़ाई लड़ी थी उस टाइम ये लड़के वहाँ पे नहीं थे. अभी हमें भी पता है कि जूनियर बच्चों को नुकसान हो रहा है और नुकसान नहीं होना चाहिए, और कुश्ती को भी नुकसान हो रहा है. मैं कई बार आपकी टीवी स्क्रीन पर बोल चुका हूं. लेकिन अभी जो ये बच्चे, ये किन को यूज किया जा रहा है, इन बच्चों को, ये गलत है. इसमें एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है. ये बच्चे सारे जो भी मैं टीवी स्क्रीन पर देख रहा था, ये सारे बच्चे के नाम यूपी से ही के नाम है आए हुए हैं, उनकी एकेडमी से आए हुए हैं. इतने बच्चे अगर उस टाइम हमारे साथ, अगर ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये खड़े थे, तो उस टाइम भी हमें उस स्क्रीन पे दिखाई देते. लेकिन इन बच्चों को यूज किया जा रहा है. इन बच्चों की पहलवानी अभी जूनियर तक की पहलवानी नहीं है, इनकी पहलवानी सीनियर तक भी है. एक पहलवान 20 से 30 साल लगते हैं बनने में, और हम भी चाह रहे हैं कि जूनियर का और कैडेट का और के नाम ही के नाम होना चाहिए कंपटीशन. लेकिन ये फेडरेशन के लचर प्रचर से जो इनको अपने के नाम आदमी को कि फेडरेशन में अध्यक्ष बनाया, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि इन बच्चों के साथ, इन बच्चियों के साथ कोई आगे शोषण ना हो, इनके साथ कोई भेदभाव ना हो. तो ये बच्चे समझ नहीं पा रहे. इन बच्चों को समझना चाहिए और अपने अखाड़े में जाकर इन्होंने पहलवानी करनी चाहिए. ओके, राहुल चौधरी जवाब दीजिए. मुकुल पहलवान आपके सीनियर हैं, कह रहे हैं आपको यूज किया जा रहा है. एक और चीज राहुल, मैं तस्वीरों को बहुत क्लोजली देख रही थी. आज जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट की है, करिश्मा ने उस प्रोटेस्ट को कवर किया है. मुझे गिन चुन के सारे विजुअल्स जो चले उसमें से शायद एक महिला दिखी और कोई नहीं दिखा. मुकुल पहलवान कह रहा है जो ओलंपियंस हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो आप ही लोगों के लिए तो लड़ी है, आप लोगों की जनरेशन के लिए लड़ी है, और अब आप ही को उनके खिलाफ यूज किया जा रहा है. जी, हम तो किसी के जो ये कहते हैं, या बात आ रही है कि भाई ब्रजभूषण के एकेडमी के बच्चे हैं या उनके हैं, ब्रजभूषण तो हमें खाने को नहीं देता.
हम तो अपने घर का खावे यार, अपनी मर्जी से गए थे वहाँ ना। हमने ब्रजभूषण को जानते हैं। अगर भाई ब्रजभूषण पूरी यूपी को खाने को दे रहा है या ब्रजभूषण हमारी एकेडमी में आकर खाने को दे रहा, हम तो अपने घर तक खा रहे हैं, अपने घर तक पहलवान नहीं कर रहे हैं ना। हमें साक्षी से है भाई, अब साक्षी पहलवान की हमारी इज्जत थी, सुशील कुमार हमारे पहलवान है, उनकी भी इज्जत है। पर जो हमारे ये बड़े पहलवान काम कर रहे हैं वो भी तो ठीक नहीं है क्या। जब अगर एक बात देखिए, साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है, ये जो अपना अवार्ड रख के गए थे वो क्या ठीक बात थी? जब ये यूपी में अपना आए थे, अपना जो है अवार्ड नदी में बहान आए थे, गंगा जी में हरिद्वार आए थे, तो हमारे किसान नेता है राकेश टिकैत जी, तब ये समझा कर लेके गए थे क्या। जब उन्होंने अवार्ड रखा, राकेश टिकैत जी तब पूछा एक बार कि हाँ भाई हम अपना अवार्ड रखना चाहते हैं, आपकी कोई सलाह हो, आपकी सरकार तक कुछ हो, गुजारिश हो, आप मदद कर सकते हो। जब हमारा समाज, जब हमारी कम्युनिटी से तो पूछ होती नहीं, अपनी मनमानी करते हैं। आज जी में करा तो आज हम अवार्ड रख देंगे, आज जी में आया तो हम आज फेडरेशन भंग करवा देंगे, आज जी में आया तो आज वो करेंगे। तो छोटू की तो बात ही नहीं सुनी जा रही, तो ये तो अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं ना। इसमें हमारी यूज की क्या बात है? यूज तो लेकिन राहुल, ये बड़े पहलवान और सरकार दोनों तरफ तो हो रहा है। ये तो मुद्दा बना दिया गया है एक हमारी रेसलिंग को, पूरी रेसलिंग भी जो कुश्ती जगत है उसको तो बट बदनाम कर राहुल, दिया है। मैं फिर पूछ रही हूँ, आपका गुस्सा सही जगह, आपका गुस्सा क्या सही जगह है? आप उन लोगों पे दोष मढ़ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ है, हमारा मोलेस्टेशन हुआ है, हमारा हैरेसमेंट हुआ है, हमारा स्टॉकिंग हुआ है, ठीक है वो। शोषण का मुद्दा तो जी और जो ब्रजभूषण के साथ मतलब है ना। बीजेपी है उसने, एक मिनट सुनिए राहुल, मैं आपसे क्या कह रही हूँ। एक तरफ है पहलवान जो इस बात के लिए लड़ रहे थे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को यहाँ से हटना है, उसने जो है पूरी गंदगी फैलाई है रेसलिंग की दुनिया में, लड़कियों को छेड़ के, लड़कियों को परेशान करके, ठीक है। आप खुद कह रहे हैं कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अलेजेडली किया वो गलत है, फिर भी आप इस पूरी लड़ाई का और उसकी वजह से आपको जो प्राइस पे करना है उसका पूरा दोष आप इन ओलंपियंस पे लगा रहे हैं, और एक बार भी आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अगर कोई भी व्यूअर ये सुन रहा है वो तो यही समझेगा ना कि राहुल चौधरी जो है और बाकी जो 300 बच्चे आए थे आज प्रोटेस्ट करने, जूनियर रेसलर्स, इनको भेजा गया है। आप गुस्सा भी तो, आप इल्जाम भी तो देखिए किस पे लगा रहे हैं। उस इंसान पे नहीं लगा रहे जिसने आप ही की फ्रेटर्निटी की 6 लड़कियों को, आप ही की बहनों को छेड़ा, लेकिन आप गुस्सा उस पे निकाल रहे हैं जिसने इस बात को प्रोटेस्ट किया। गुस्सा कहाँ निकाले जी? गुस्सा तो निकालना पड़ेगा ना। जिस आदमी ने अब गलत किया था उसके तो हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं ना। वो तो कुश्ती से हट गया, वो तो उसका मुकदमा चल रहा कोर्ट में, वो तो कोर्ट से उल्टेगा उसे। उसमें इसका क्या मतलब है? अब जो संजय सिंह है इसने किसी का शोषण थोड़ी करा है। या जो नई फेडरेशन बनी है, अगर फेडरेशन में चलो भाई संजय सिंह जो है ब्रजभूषण का आदमी है, तो जब चुनाव हुए थे तब इन्हें अपना कैंडिडेट या कोई और है जो हमारे बड़े पहलवान है, तब इन्हें उतारना चाहिए था। अब कल को दोबारा चुनाव हुए, क्या पता उसकी पॉलिटिकल पावर जो भी है, पकड़ है, कल को एक आदमी और बन जाए, ये कहने लगे कि हाँ भाई वो भी उसका करीब है, तब क्या होगा फिर? ऐसे तो हम नरेंद्र मोदी जी को कहते कि हाँ भाई ये तो गलत इंसान है, कोई 10 आदमी आगे कहे, कोई राहुल गांधी कहता है हाँ नरेंद्र मोदी गलत है, तो वो गलत थोड़ी हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई वो उसका साथ है तो वो भी गलत होगा। इससे हम कैसे जज कर लेंगे किसी को? अच्छा, संजय सिंह को हम कैसे जज कर सकते हैं बिना उसके फैसले के या बिना किसी उसी चीज के? आप बताइए, आप कैसे जज कर सकते लेकिन हैं? आप तस्वीरें देखिए ना, आप तस्वीरें देखिए, ये इलेक्शन के बाद की तस्वीरें हैं राहुल। और ऐसा देखिए जरा, आपको लग रहा है कि कौन इलेक्शन जीता है? तस्वीरें देख के साफ लग रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह इलेक्शन जीते, संजय सिंह नहीं। संजय सिंह कहाँ है? राइट में खड़े हुए हैं बेचारे, बिना किसी माला के। सारी जो बधाई दी गई है, क्यों दी गई है ब्रिजभूषण शरण सिंह को? क्योंकि सबको पता है प्रॉक्सी, संजय सिंह प्रॉक्सी कैंडिडेट थे। खैर ठीक है, चंद्रशेखर लूथरा जस्ट कम इन हियर, आई वांट टू आस्क यू। ठीक है, मैं समझ गई। Chandrasekhar Luthra, I just want to come to you and ask you whether this mess will at all get resolved. First, you had Olympians of this country coming to the streets, fighting the WFI, its president. A lot has happened in the last 1 year. There was an election as well. That election got suspended. Now there is an ad hoc committee. Now junior wrestlers have come to the streets to protest against the senior wrestlers. Where do you see this mess being cleaned up at all, given the level of politics we see, not just in the wrestling federation, but you know, across sport federations? Is this politics? Is this something else? Well, this is what we all were expecting, to happen. This is a system. System is coming, is hitting you back,
and we were expecting it. Even Karishma knows. Even when they sat on Dharna last January, 1 year back, there were talks about that one of the group from UP, Brij Bhushan Singh people, they are also going to protest against these wrestlers. This is how a political people, especially the mighty, powerful people, they can hit you back with. That's how, or that's why these wrestlers were demanding arrest of Brij Bhushan Sharan Singh. Have you ever heard in India? Or obviously the powerful people avoid these kind of things. But overall, if Delhi police charge sheet has said that yes, there are 6 or 7 girls who have been molested, who have been stalked by Brij Bhushan Sharan Singh, and despite all that charge sheet, Brij Bhushan Singh is still out without any without facing any arrest or any kind of thing. So when a powerful person like him is out, then obviously you have to face these kind of problems. This is just a beginning of the end for these wrestlers, these Olympic medal winners or the Commonwealth game winners. They are winners in their own way, but in the political circles, they are nowhere. They are not being required by this government or this fraternity. Everybody knows who has won elections. Everybody understands that Sanjay Singh is not just a business partner, but like a son to Brij Bhushan Sharan Singh. And despite that, we are letting them rule or letting them out of the jail or letting them, out without any kind of fear. He's a powerful person, and I can expect even more in the coming days. All right. We leave it there. Sakshi Malik already saying that her mother has started getting threat calls from some goons. She is alleging that it is men who essentially support Brij Bhushan Sharan Singh. We do not know how true that is, but at least that is... No, but you have to understand, there was a POXO case also. There was a underage girl also. And when she was threatened, her family was saying, every day we have been threatened, we have been chased by Brij Bhushan Sharan Singh goons. And they changed their statement. Suddenly she became overage. Suddenly she became adult. So this is how a pressure or a political pressure or even the, jo dar kehte hain na, Rahul Chaudhary, I don't blame him. He's just a pawn in this entire, chess. He is just a very small fry. How good a wrestler he is or no, we are not going to debate about that. But the point is, my suggestion to Rahul or anybody is that it is not about you. It is about your sister or maybe the colleague or anybody, जब उन पर यौन हिंसा या उन पर यौन शोषण होता है, then you have to come out and sit on these dharnas. So it's a very, very sad day for India in a way. And you have to also understand, till the time Brij Bhushan Sharan Singh is not arrested, these kind of pressures and tactics will continue. Okay. Karishma, I have exactly 10 seconds, but you were at the protest today. Did you see any women wrestlers there? Because that is telling as well. Well, Shreya, as far as I can remember, I don't remember seeing any of women present there in that entire protest. I remember speaking to all young boys, and from whatever I remember, I do not remember seeing any women present there at Jantar Mantar when the protest was on. Not even, maybe 1 or 2, as I recall, maybe 1 or 2, but the majority, of course, was dominated by young, angry junior wrestlers at Jantar Mantar today. All right. All right, Karishma, thank you for that clarification. And I think therein lies the story. I really think that therein lies the story. We'll leave it there for the moment. Karishma, thank you very much for joining us. Mukul Pahalwan, thank you very much. Rahul Chaudhary, aap aaye show mein, aapne apni baat rakhi. Thank you very much. And Shekhar Luthra, thank you very much as well. Thanks to all of you for joining us on our top lead this evening. Let's get